Okay, Assalamu alaikum. We will continue our previous lecture. We have done till the types of canals. Okay, now in this lecture we are going to discuss about how the big dams, the huge dams, the mega dams, they are helpful in the development. Okay, and they are helpful in order to increase the supply of water. Okay, and first of all, we know that Mangla Dam, Tarbila Dam, and Varsak Dam, they are the main huge mega dams of Pakistan. These dams, they allow the perennials canals and the link canals to provide water throughout the country in order to provide water not only for irrigation, uh, since we are an agricultural country, so irrigation needs huge amount of water. Secondly, for the industries also. Thirdly, for domestic purposes and for other uses also. As far as Tarbela Dam is concerned, only Tarbela Dam is able to irrigate the 13% of the agricultural fields of Pakistan. So again, obviously, the increase in the agricultural field means the increase in the economy of Pakistan, which again help in the development of Pakistan also, in different manners. Secondly, it mega dams, they also produce the hydropower electricity, and 16% of Pakistan's electricity is overall Pakistan is only generated by Tarbela Dam. ठीक है ना. So again, if there would be more and more electricity, it means there will be more and more industries. Obviously, the machineries in the industries, they are being run by the electricity. If there would be more industries, there would be more production of different products. If there would be more production of different product, it means it will help, definitely it will help in economic development for the country. सही है जनाब. And as far as hydropower electricity is concerned, it does not produce any kind of greenhouse gas emissions, means nitrogen and carbon dioxide and this and that. So it is very clean, it is very safe. Okay. So again, and the third, obviously the major role of these mega dams are to stop the flooded water, to store the flooded water in the reservoirs, in the huge reservoirs. And again, the floods cannot damage the settlement areas, the agricultural fields, the industries, whatever. So it reduces the flood danger also. Okay. So these are the developing work which can be done through the mega dams. But if something has advantages, it also has some disadvantages all. ठीक है ना. So what are the disadvantages which we have to discuss? Okay, when we start making the dams, when we start constructing the dams, they flood the huge areas. So we have to evacuate a very very large area, and we have to tell the people, if the population is living over there, to move from their homeland area to other place in order to make the mega dams. So this is the first and the foremost disadvantage. Okay, people who are living over there, they have to evacuate that area so that dams can be the huge reservoir, and the other things can be constructed over related to dams can be constructed over there. Secondly, obviously, if we are constructing the mega dams, it means billions and billions of dollars are required in order to construct them. And I told you in the class also, okay, you have to the construction takes at least 6 years. Okay, maximum 5 to 6 years in order to complete the construction of the whole mega dam. So obviously till 5 to 6 years, we need continuous amount of money also. ठीक है, in terms of dollar ले लें या in terms of rupee ले लें.
फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? रिवर, अगर इफ द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन कंट्री टुवर्ड्स अनदर कंट्री, ऑब्वियसली रिवर फ्लो जो है ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो है द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वी ऑल नो दैट रावी, सतलज, चनाब, ऑल द हेडवर्क्स आर इन इंडिया, ठीक है। तो इट मीन्स के जो है वो द स्टार्टिंग ऑफ द रावी, सतलज एंड चनाल इज फ्रॉम इंडिया, देन इट इज एंटरिंग इनटू Pakistan. So if we make dams over such rivers which whose initiation is from some other countries, so there can be a dispute in between these two countries, ठीक है। वैसे भी you know that as far as Pakistan is concerned, Pakistan and India, we have from initial basis 1948 से ही we were having disputes over the water flow, ठीक है, over river Indus also and over other rivers also, जो कि हम later on Indus Water Treaty के थ्रू जो है वो solve भी हुई है, लेकिन बहरहाल there are problems। फिर डैम्स जो है वो they have a limited life span because of siltation। siltation क्या है बेटा? Okay, obviously when the river is flowing, it is not flowing as filtered water, it is bringing the mud and the soil and the rocks, everything is small and small rocks and everything along with it, ठीक है। when it flows, when it enters into the reservoirs of the dams, it brings these things along with it, they got settled under the basement of these dams. So and then it means ke it is shortening the lifespan of the dams। big dams cannot be cleaned, ठीक है ना, उनको हम क्लीन नहीं कर सकते, इसी के उसका जो उसमें जो इतना ह्यूज जो है बिलियंस क्यूसिक ऑफ जो है जो वाटर है वो हमने जो स्टोर किया हुआ है, वो हम उसको हम कहीं और कहाँ स्टोर करेंगे कि फिर हम उसको पूरा खाली करके हम उसके टैंक को या उस रिजर्वायर को साफ कर सके। सो इट कैन नॉट बी क्लीन। सो उससे क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स जो हैं, जितना भी सिल्टेशंस है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल हो रहा है, तो उसका जो है वो आपके जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। सो अगेन फिर डैम की जो है वो आपकी लाइफ स्पैन वो कम होती है। दिस जो है इसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तान रिवर्स कैरी enormous loads of sediment which is deposited in the reservoir behind the dam. This gradually reduces the dam's capacity to store water and to generate electricity। Obviously जितना पानी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी की भी जनरेशन कम हो जाएगी, एंड कैन मेक डैम्स वीकर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कैपेसिटी ऑफ तरबेला डैम हैज रिड्यूस्ड बाय अ थर्ड बिकॉज ऑफ सिल्टेशन, ठीक है। तरबेला डैम 1960s में बना था, तो अब 2025 है, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बाय थर्ड पर, यानी कि आपके तकरीबन जो है 25 70%, बल्कि 25 भी नहीं 70% समझिए कि कम हो गई है। सो वी हैव टू मेक न्यू डैम्स ऑल्सो, मेगा डैम्स ऑल्सो। द वाटर लिविंग डैम्स कैरीज मच लेस sediment because of siltation। this means that tidal deltas receive less sediments, became smaller and more vulnerable to rising sea levels। The Indus Delta may have shrunk by 92% over the last 150 years। अब ये कह रहे हैं कि रिवर जो है लेटर ऑन सारा फ्लो करता हुआ, इट मैंने आई टोल्ड यू कि इट फ्लोज एंड इट गेट डम्प्ड इनटू अरेबियन सी। पंजाब से जो है रिवर फ्लो करता हुआ इट एंटर्स इनटू सिंध एंड देन इट गोज इनटू द थ्रू द कोस्टल एरिया, इट गोज इनटू द सी। अब ये होता है कि नियर द कोस्टल एरिया इट मेक्स अ टाइडल डेल्टा, ठीक है। बट ये आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाट इज अ टाइडल डेल्टा। लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, यहाँ पे रिवर वाटर गेट को इनसाइड विद द सी वाटर ऑल्सो। कोस्टल एरिया पे वहाँ पे क्या होता है, जहाँ से ये रिवर वाटर समुंदर में जाके गिर रहा है, उससे पहले का जो प्लेन लैंड एरिया है वहाँ पे ज़ाहिर कोस्टल एरिया पे समुद्र का पानी भी आ रहा है, और उसके बिसाइड्स जो है वो आपका रिवर वाटर भी फ्लो कर रहा है। अगर इस रिवर वाटर के पास साथ सेडिमेंट्स नहीं होंगे, सिल्टेशन नहीं होगी, जो कि ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है आपके क्या कहते हैं रिजर्वायर्स में, डैम्स के रिजर्वायर में,
तो इसका लेवल कम हो जाएगा और समुंदर का लेवल जो है वो हाई होगा, और उससे जो है वो बड़ा डेंजर रहता है कि आपके यहाँ जो है वो सुनामी आने का भी मतलब आपके अगर कोई जो है टोरेंशियल रेन होती है या फिर जो है वो आपके सुनामी वगैरह समुंदर में आता है, तो ये पूरा फिर एरिया जो है इट विल गेट कवर्ड बाय दैट सुनामी, दैट टाइडल वेव्स। ठीक है, इसको मैं फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में इट विल बी एक्सप्लेन्ड आपके थॉरली। ठीक है, ये हो गया जनाब। देन कैनाल्स और उसकी डेवलपमेंट जो है वो उसके क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हो सकते हैं। मोस्टली जो कनाल इरिगेशन है ये जनाब ये क्यों कंस्ट्रक्ट की जाती है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वाटर फॉर टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, नियरली 3 quarters ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल लैंड इज इरिगेटेड थ्रू canal irrigation। ठीक है, and making it largest irrigation system in the world। I already told you, we already know that। however there are problems तो जो कि canal irrigation के थ्रू है। होता क्या है, ऑल द कैनाल्स आर नॉट सीमेंटेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और चूंकि पाकिस्तान का सबसे पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है, यानी कि थ्रू आउट पाकिस्तान कैनाल्स आर देयर। ठीक है, चाहे वो इरीगेट पेरेनियल हो, नॉन पेरेनियल, इनंडेटेड हो, लिंक कैनाल्स हो, देयर आर लॉट्स ऑफ कैनाल्स which are providing water throughout the Pakistan। So they are not all of them are not cemented। इसके लिए बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। सो होता क्या है कि इससे एब्जॉर्प्शन होती है इसकी जो दोनों वॉल्स हैं उसके थ्रू, या जो बेसमेंट है उसके थ्रू, या लीकेज फ्रॉम दीज कैनाल जो हैं, लीकेज कह लीजिए या एब्जॉर्प्शन कह लीजिए। इट इंक्रीजेज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। ज़मीन के नीचे पानी मौजूद है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसका एक लेवल रखा है। अब अगर कैनाल के थ्रू पानी फ्लो भी कर रहा है और साथ साथ उसकी दोनों वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, या बेसमेंट के थ्रू मजीद अंडरग्राउंड वाटर टेबल राइज अप होगा। अब वो जब जो है ज़मीन के ऊपर लेवल पे आएगा तो वो अपने साथ नीचे डिफरेंट मिनरल्स को अपने साथ लेके आएगा। सॉल्टी पैचेस बन जाते हैं जिस और वाटर लॉग हो जाता है, और वो जो जिस एरिया में ये वाटर टेबल हाई होके ज़मीन के सरफेस पे आ जाता है वो वाटर लॉक्ड एरिया कहलाता है। और जो पानी है वो तो बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ टेम्परेचर इट गेट एवापोरेटेड, लेकिन एक सॉल्टी पैचेस, वाइट सॉल्टी पैचेस रिमेन्ड ओवर देयर। ठीक है ना, पानी तो एवापोरेट हो गया, वो वाइट सॉल्टी पैचेस रह जाते हैं, उसको सैलिनिटी का प्रोसेस कहते हैं। और ये ज़मीन को इरिगेशन वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के काबिल नहीं छोड़ता। ठीक है, फिर यहाँ पे इन एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। सो एंड इट मेक्स द सॉइल यूजलेस। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड दिस द होल प्रोसेस कॉल्ड एज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। मैं इसका वीडियो भी आप लोगों को भेज दूंगी। एंड देयर इज अ लॉस फ्रॉम एवापोरेशन, पानी का लॉस हो रहा है। ओपन ऑल द कैनाल्स आर ओपन कैनाल्स। ऑब्वियसली हम इन इतनी जो ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैनाल सिस्टम है हम इसको कवर्ड भी नहीं कर सकते। तो और हम जो है चूंकि हॉट एरिया में पाकिस्तान कम्स इनटू हॉट ह्यूमिड एरिया, तो 365 डेज में से मेजर जो डेज हैं वो जो है सूरज हमारे सरों पर होता है, एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, वी आर लूजिंग द वाटर ऑल्सो। ठीक है, फिर इसके बाद Pakistan irrigation system support extensive agriculture which soaks up a huge proportion of water। ये मैं आप लोगों को already soaks up यानी वही आपके जो है वो absorb कर रहा है। and water is also increasing in increasing demand from industry and domestic use also। फिर इसके अलावा हमें जो है we don't only need water for the agricultural activity for irrigation purpose, we need for domestic use, we need water for industrial activities also and for some other purposes also। सो अगेन हम जो है ना जो है वो कैनाल इरिगेशन की वजह से हम ये सारी एक्टिविटी हमारी जो है वो पीछे रह जाती है, यह पानी इसके लिए हमारे लिए कम पड़ जाता है। Canal irrigation can produce inequality also। Those at the end of the canal system, tail enders जो हैं
can receive insufficient supplies, especially if those further up the canal waste water or take more than they need. होता क्या है, कैनाल थ्रू आउट, अब पाकिस्तान में वी ऑल नो दैट के पंजाब में स्पेशली सारा ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, लैंड एरिया, सिंध का मोस्ट ऑफ द एरियाज। तो होता क्या है, जहाँ से कैनाल इनिशिएट कर रही है, इंडियन कैनाल, वहाँ पे जो लोग ज़्यादा पानी ले लेते हैं, और फिर जो कनाल जहाँ तक एंड टेल एंडर्स तक जा रही है, वहाँ पे या तो पानी पहुँचता नहीं है या फिर कम पहुँचता है। सो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज, ठीक है, कि हम जो है इनइक्वालिटी है, मतलब जस्टिस इज नॉट देयर। सो this is the advantage and disadvantage of having dams and having canals also.